Hello, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal. Thank you so much for joining in. Today we have the honor of basically welcoming Tarannum Ahmed. Thank you, Tarannum. Thank you so much, Amber. So Tarannum, she is a powerhouse of talent with 17 years of experience in education as a registrar for GEMS. She's currently a registrar for GEMS. Apart from that, she's very passionate about arts and culture. She has hosted several prestigious national and international events and worked with legends like Abida Parveen, Javed Akhtar, Ustad Rahat Fateh Ali Khan. And by the way, she does all this in the Middle East. She's basically based in Dubai, but she also is, associated in philanthropy work, organizing events and that uplift blue collar community, especially working in collaboration with Sharjah government and Smart Life Foundation. She is also a very gifted theater actor. She has portrayed iconic roles like Meena Kumari in Chalte Chalte. So today we are going to learn from her. We are going to hear her inspiring story, and I'm sure that we will be picking up lots of wisdom from her. So let's welcome her once again. Thank you, Tarannum, for joining us. It's my pleasure to host you tonight. Adab, good evening. Thank you so much, Amir, for having me here tonight. And I'm also grateful to Farah and Nurture Life. आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस गुफ्तगू के लिए मदऊ किया और it's a pleasure to be here. Thank you so much. तारुफ के लिए खास तौर से शुक्रिया. आपकी आवाज जरा सी मिस हो गई, क्या कह रही थी आप? मैं ये अर्ज कर रही थी कि इस हसीन तारुफ के लिए खास तौर से I think you deserve it because you have been in the UAE for the last 25 years and you have been continuously working. I mean, इस हफ्ते में भी हमारी जितनी बार बात हुई है उतनी बार you were, getting out of a rehearsal, getting into something, and you were like, and I was wondering that how can you be so busy all the time? And you were really, it's something. I mean, you got so much going on for you, and that is something very, very brilliant, absolutely marvelous. So, as far as your journey goes, you have been in Dubai for a long time. So, शुरुआत से शुरू करते हैं. थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे आप इंडिया से दुबई पहुंची, कैसे आपने एजुकेशन में एंटर किया और सारी बातें करते हैं. So, let's begin from the very beginning. Let's begin from the very beginning. So, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, यूपी से बेसिकली. वालदा लखनऊ, वालिद साहब सहारनपुर और मेरी स्कूलिंग सहारनपुर में ही हुई, सोफिया से. घर में जो माहौल था वो उर्दू का बहुत ज़्यादा था क्योंकि बातचीत की ज़बान यही थी हमारी और ख़ास तौर से वालिद साहब शायर, मम्मी स्कॉलर उर्दू की, तो वो उस वजह से और ज़्यादा माहौल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़मानों में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज नहीं होती थी, तो मैं बतौर ज़बान पढ़ नहीं सकी कभी. जितनी घर में सीखी या मम्मी ने पढ़ाई उतनी पढ़ी. उसके बाद हाई स्कूल सोफिया से करने के बाद मैं एमयू चली गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री हासिल की और उसके बाद कुछ बहुत कम अरसे के लिए मैं दिल्ली में थी, जहाँ मैं ज़ेरॉक्स में जॉब कर रही थी. फिर जैसा कि आपने कहा कि 25 साल पहले यूएई का रुख किया, जैसे हमारे यहाँ अमूमन होता है सोसाइटीज़ में. जो मर्द हजरात हैं वो नौकरी की तलाश में इस तरफ आते हैं और जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर शादी होके आती हैं. अब थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है. बहरहाल, सो आई गॉट मैरिड एंड देन आई शिफ्टेड बेस टू यूएई. और यहाँ पे मेरे ख्याल से शुरू में जब मैं आई हूँ तो मेरे भी उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और जो एमयू के और दिल्ली के और मेरे पुराने जानने वाले थे उनको भी इल्म नहीं था कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें तब नहीं थी. तो कुछ अरसा तो कहते हैं ना वो एक दौर गुजरा जहाँ ये सब मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद पड़ी हुई थी. तकरीबन बंद भी नहीं, बिल्कुल बंद थी. लेकिन फिर क्योंकि एक साहब थे, उनके थ्रू somebody got in touch with me and the first show that I started with here in UAE was a ghazal night with Talat Aziz. So I think शुरू के कुछ साल मैं यहाँ पर उस तरह से इनएक्टिव रही अदब के लिहाज से और इवेंट्स के लिहाज से.
लेकिन that was the time when I was also, taking care of my kids and all that. So that was the time where I was engaged there. And then after Talat Aziz, it has been a journey, alhamdulillah. So far, so good. और फिर तो सिलसिला जो शुरू हुआ है, एक शो के बाद फिर दूसरा, फिर गजल्स, फिर आपका ड्रामा, फिर शायरी, तो वो सब चीजें जो तसलसल चला, तो फिर तो इस बीच में आपने मतलब आप ये सारी चीजें भी कर रही थी, आप कल्चरल चीजें भी कर रही थी, बट यू ऑल्सो टुक अप अ जॉब, यू स्टार्टेड वर्किंग प्रोफेशनली ऑल्सो. यस, क्योंकि एक ये जो सब चीजें होती हैं, ये आप करते हैं, लेकिन उतना रेगुलर या उतना आपको एक डिसिप्लिन रहने के लिए, एंड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन इंडिया विद Xerox, सो आई हैड always had that mindset, the professional mindset, कि ये करना है, and फिर आपके पास experience है, degree है, तो why not put into a good use. तो ये जो जेम्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, इनके साथ जो मेरा सफ़र है, वो तकरीबन 18 साल अब होने को है, 17+ years माशाल्लाह हो चुके हैं. तो रजिस्ट्रार की पोजीशन के लिए I was approached, and then I, as per the procedure, joined in. So this is the position that I joined those many years back, and I'm still very much there with them, alhamdulillah. Again, the journey has been very fruitful and satisfying with GEMS as well. तो वो सिलसिला पैरेलल जारी रहा, लेकिन क्योंकि वो मेरे मिजाज के कतई बरअक्स है, बरअक्स इन द सेंस के उस तरह की प्रोफाइल्स काफ़ी एक लिहाज से ड्राई होती हैं. इट्स सो मच अबाउट नंबर, figures and calculations and all that, which is very different and in contrast to true. what I truly feel I belong. तो वो शायरी और वो सब, तो एक वो तवाज़ुन जो है मेरी ज़िंदगी में, वो इस तरह बरकरार है कि जहाँ एक तरफ, हालांकि वहाँ मेरा इंटरेक्शन लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बहुत होता है, पेरेंट कम्युनिटी है या और बाकी अपने यहाँ के लोग, तो वो एक्सपोजर अलग तरह के लोग, अलग तरह के बैकग्राउंड्स और उस तरह से रहता है, सोशल बैकग्राउंड्स के हिसाब से. लेकिन जो बेसिकली प्रोफाइल है इज़ वेरी कैलकुलेटेड एंड ड्राई स्टफ, which is balanced with my literary and cultural activities, so that keeps the balance and I keep going. But that must be really hard also, एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना, एक तरफ अपने, obviously it's your passion, so you really incline towards it, लेकिन फिर भी इतने सारे इवेंट्स होस्ट करना एंड थिएटर करना, so is it easy to balance it out, or yes, how do you do that basically? If you love what you do, then nothing is difficult. And I'm equally passionate about both the things. So okay. I mean, वक्त मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्वारी किसी किस्म की है. और 24 घंटे ही होते हैं हम सबके पास. अब उसमें आप किस तरह से प्रायोरिटाइज करें, किस तरह से हर चीज़ कंपार्टमेंट में रखें और उसको बराबर टाइम दें. और ये जो मेरे कल्चरल इवेंट्स और ये एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं. मैं कितना भी बिजी हूँ ऑफिस में, या कितना भी मेरा पूरा शेड्यूल टाइट है, या टाइमलाइंस हैं, या मीटिंग्स हैं, जो भी है, ये एक चीज़ ऐसी है विच कीप्स मी गोइंग. तो और जब इवेंट्स होते हैं या किसी चीज़ की तैयारी है, रिहर्सल्स हैं, जो भी, तो मैं उससे स्ट्रेस आउट नहीं होती हूँ, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वो चीज़ मुझे और तक़वियत पहुँचाती है. एंड आई फील मच बेटर when I'm involved in all these things. कभी बीच में एक लैग आ जाता है, जैसे रमज़ान में नहीं होती हैं एक्टिविटीज़, या फिर यहाँ जब समर्स होते हैं जुलाई अगस्त के दौरान, तो एक्टिविटीज़ काफ़ी कम उस दौरान होती हैं. तो तब लगता है कि कुछ खला है, कुछ कमी है, कुछ नहीं हो रहा है. तो आदी हो चुकी हूँ मेरे ख्याल से मैं इस तर्ज़ ज़िंदगी की. अच्छा, तो मिडिल ईस्ट का, यूएई का जो कल्चरल सीन है, वो इंडिया से फ़र्क है काफ़ी, या कुछ वैसे ही है? फर्क तो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया में जिस स्केल पे होते हैं और जितने फ्रीक्वेंट वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उतने यहाँ नहीं होते. लेकिन यूएई जो है वो एक हब बन चुका है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है. और यहाँ का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर्स हम सब यहाँ पे एक साथ हैं, तो हमें आर्टिस्ट जो हैं वो हर तरफ के मैसर होते हैं. और हमारी खुशकिस्मती होती है कि हम हर तरफ के आर्टिस्ट और शोरा
को सुन सकते हैं, उनकी आर्ट से महसूस हो सकते हैं, वो चीज़ वहाँ नहीं है फिलहाल। तो इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि एक तो स्केल बहुत अलग होता है इवेंट्स का, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो सारी लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, अगर आपके आर्टिस्ट इंडिया के हैं, आप बेस्ड दिल्ली में हैं, आपके लिए इवेंट करना बनिस्बत यहाँ एक इवेंट खड़ा करना आसान होता है, क्योंकि आपके आर्टिस्ट वहीं से लोकली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लॉजिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ सिनेरियो अलग है। लेकिन अब with the globalization of everything, and I mean the sponsors coming in from all parts of the world and the organizers coming in from everywhere pitching in, तो आसान होता जा रहा है। अब यहाँ बहुत इवेंट्स होने लगे हैं, पहले उतने ज़्यादा नहीं होते थे, एक दो हो गए महीने में, 3 महीने में एक हो गया, तो पीपल वुड एक्चुअली बी वेरी ईगर एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। अब ये हो गया है कि बहुत होने लगे हैं, तो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से ये भी है कि लोगों को लगता है अच्छा ये वाला मिस होगा तो चलो, तो इट्स वेरी दूसरा देख लेंगे। There are options now, but the events mostly there. I think it's mostly big stars are there. Usually, I mean, in India, there are people from uh, artists from almost all cadres who are here who perform in. यहाँ हर स्केल पे इवेंट्स होते हैं ना, बहुत ही छोटे लेवल पे भी होता है और बहुत ग्रैंड स्केल पे भी होता है। वहां पर ज्यादातर ग्रैंड स्केल वाले होते ही होंगे मेरे ख्याल से, राइट? ये जहाँ एक अच्छी बात है वहाँ थोड़ी सी नेगेटिव भी है बात, जो मुझे बजाते खुद नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई इवेंट तैयार करते हैं, सामने रखते हैं, तो यहाँ पर अमूमन लोग ये पूछते हैं अच्छा तो सेलिब्रिटी कौन है, कौन स्टार एक्टर आ रहा है या कौन सिंगर आ रहा है, उस तरह से होता है। एक नाम की बहुत अहमियत है यहाँ पे, टैलेंट काउंट्स बट दैट फॉल्स बिहाइंड द नेम, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे फनकार हैं, गुलकार हैं जो बहुत अपने फन में महारत रखते हैं, लेकिन वो फॉर एवर रीजन नाम उस तरह का नहीं बना पाए जिस तरह कुछ नाम बन गए। तो यहाँ पे एक वो चीज़ है, क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस है यहाँ पे, तो जो बड़े नाम हैं उनकी वैल्यू, उनको सुनने का, उनको देखने का इश्तियाक बहुत रहता है। आप एक बहुत अच्छा इवेंट क्यूरेट करें, बहुत अच्छा इवेंट पेश करें, अगर उसमें आपके साथ बड़े नाम नहीं हैं, आप पुल नहीं कर पाते हैं ऑडियंस, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ये हम लोग रोज़मर्रा अपने इवेंट्स में वी फेस दिस एवरी टाइम वी आर प्लानिंग टू प्रेजेंट एन इवेंट। तो आप सही कह रहे हैं कि इंडिया में हर लेवल पे इवेंट्स हो रहे हैं और उनको रिसीव बहुत अच्छी तरह, बहुत पॉजिटिवली किया जा रहा है। यहाँ पर वो थोड़ी सी दिक्कत या दुश्वारी पेश आती है। तो लेकिन वहां पर जैसे आप कह रहे हो ग्लोबल ऑडियंस है, तो फिर उनकी वो बहुत ही डाइवर्स होगी, नहीं? बहुत ही मुख्तलिफ टाइप की ऑडियंस है, तो उन सबको कोई चीज ऐसी सर्व करना कि सबको पसंद आए, आई मीन दैट मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई मीन दैट्स बियॉन्ड लॉजिस्टिक्स, इट्स लाइक हाउ डू यू डू दैट? It definitely is, because I basically cater to, or I'm involved with events which are basically about Urdu and around Urdu. तो मेरा जो है वो ग्लोबल ऑडियंस, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ, तो मेरे लिए जो हमारे बड़े सगीर के लोग हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो आबादी है या वहाँ के जो लोग हैं जो ताल्लुक हमारे मुल्क और हमारे आसपास कुर्बुजवार से रखते हैं, वो फोकस ऑडियंस है हमारी। तो वो तो उनके इंटरेस्ट, उर्दू बिकम्स द कनेक्टिंग, उर्दू से कनेक्टेड या पंजाबी या उर्दू, तो हमारी जो मुश्तरका तहजीब है, ज़बान है, वो सब हमारा एक है। तो जो इवेंट्स हम उर्दू के या थोड़े बहुत पंजाबी के हवाले से रखते हैं, वो फिर ऑडियंस सारी कनेक्ट करती है, बड़े सगीर की जो भी है, तो वो हमारी ऑडियंस है। बाकी जो इंटरनेशनल इवेंट्स अदरवाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश, हिप हॉप, रॉक स्टार्स, ये सब के भी होते हैं, और भी ज़बानों के होते हैं, उससे मेरा एज एन इंडिविजुअल या एज एन इवेंट पर्सन कोई ताल्लुक है नहीं। एज सच मेरा मेन जो है वो उर्दू है, उर्दू अदब है, शायरी है, मौसीकी है, एवरीथिंग टू डू अबाउट उर्दू।
एंड हाउ हैज यू बीन एक्सपीरियंस, आई मीन खास तौर से जो बड़े नाम होते हैं जैसे कि आबिदा परवीन, जावेद अख्तर, उस्ताद राहत फतेह अली खान, इन सबको आपने होस्ट किया है, सो हाउ हैज बीन दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? It's been overwhelming. It's been a dream. अगर हम ये कहें कि ख्वाब ख्याल में ही कभी सोचा था कि शायद ख्वाब ख्याल में भी मैंने नहीं सोचा होगा कि मैं किसी दिन ऐसे मकाम पे पहुंचूंगी जहां मैं ऐसी शख्सियात के रूबरू खड़ी भी हो सकूंगी। तो बहुत ही एक फख्र भी महसूस होता है और कभी-कभी ये भी लगता है कि खुद को you kind of try to pinch and feel yourself. Have you actually been there? Have you actually seen them? Have you actually interacted with them at that level? तो बहुत ही हसीन तजुर्बात रहे हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ। और ख़ास बात और हैरानकुन बात ये है कि जितने बड़े नाम हैं उतनी ही इनकिसारी इनके अंदर है। आप इनसे मिलें, इनसे बात करें तो शुरू में पहले इंटरेक्शन में तो या शो से पहले जब एक वो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है उस दौरान थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि मतलब हम कहाँ और ये लोग कहाँ, तो घबराहट। लेकिन एक बार आप इनिशियल सलाम दुआ के बाद बात करनी शुरू करें तो आपको एहसास होता है कि क्या ही बने ये लोग, मतलब इतना आपको दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल। Obviously, where they are, they know how it feels to be where we are at this point. तो क्योंकि उनका सफ़र भी वहीं कहीं से शुरू हुआ था, तो उनको अंदाज़ा है कि हमारे जैसे लोग किस तरह फील करते हैं या क्या फील करते होंगे। इंटिमिडेटेड ऑब्वियसली फील करते हैं हम ऐसी शख्सियात से, तो दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल। और जब वो अपने बारे में, अपने सफ़र के बारे में, अपनी जद्दोजहद के बारे में आपसे बात करते हैं, दैट्स व्हेन यू लर्न दैट ये जो इतना मवाद और इतने जो इनके अंदर ये ठहराव आया है, कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बने हैं जो आज दिखते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एंड इट्स बिन अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड कहते हैं कि वैल्यूएबल लर्निंग। एक एक शख्स अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ आपको सिखा के गया है, सिखा के जाता है। ये सिफत है हम लोगों की। Very true. I can vouch for that. So, you've also been a performer. I mean, you also perform. You've done Chalte Chalte, Meena Kumari's Chalte Chalte. So, how has that experience? I mean, how you ended up joining theatre? How did you end up joining theatre, first of all? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा से आपके साथ या आपके अंदर होती हैं और फिर कभी किसी वजह से वो कहीं पे बैक बर्नर पे चली जाती हैं। फिर वो एक आप भी क्योंकि उसी इंडस्ट्री से, आपको पता है कि एक जो लोग आर्टिस्ट होते हैं या एक्टर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कीड़ा होना। वो एक अगर है तो वो है और अगर नहीं है तो वो नहीं आ सकता बाद में। तो एक ये सब स्टेज और ड्रामा और ये होस्टिंग ये सब स्कूल से सिलसिला शुरू हो गया था और फिर एएमयू में काफ़ी किया। और जब मैं दिल्ली में थी उस दौरान भी और एएमयू के दौरान भी मैंने तब दूरदर्शन हुआ करता था, तब ये सैटेलाइट टीवी नहीं होते थे और ऑल इंडिया रेडियो होता था। तो इन सब में वो रेडियो ड्रामा होता है, वो एक आध बार किया और दूरदर्शन के लिए किया। एक टेलीफिल्म बनी थी जिसको अवार्ड भी मिला था, वो गर्ल चाइल्ड के ऊपर, वो एएमयू में ही हमारे यहाँ शूटिंग थी, उसमें भी हिस्सा लिया था। लेकिन फिर यही होता है कि आप वो है ना, तुझसे भी दिल फरेब है हम रोजगार के और बाकी तब मजीद चीज़ें आप उनमें लग जाते हैं तो चीज़ कहीं रह जाती है। फिर जब यहाँ पे इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ दोबारा यूएई में और फिर एक के बाद एक चीज़ें आती गईं। बहुत चीज़ें थी जो मैं नहीं ले सकी और ज़िम्मेदारियों की वजह से, कुछ चीज़ें थी जहाँ पे मैं बैलेंस कर पा रही थी, तो मैंने दोबारा से स्टेज एज एन एक्टर शुरू किया। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 18 साल के गैप के बाद जो मैं बतौर एक्टर स्टेज पे गई थी यहाँ, वो मैं गई थी मल्हार सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इवेंट था, ट्रिब्यूट टू बेगम अख्तर ऑन अ 100th ईयर।
तो हाय अख्तरी के उन्वान से ये था, इट वाज अ म्यूजिकल प्ले। वहाँ पर एक किरदार मैंने अदा किया था। जो दूसरा किरदार वो चाहते थे कि मैं अदा करूँ, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए था, जो उस ज़माने मुश्किल था निकालना। तो ये किरदार मैंने अदा किया था बेगम जान का, गौहर जान का, जिनसे इंस्पायर अख्तरी बाई होती हैं। तो वो था, दैट वाज आफ्टर अ ब्रेक ऑफ गुड 18-19 ईयर्स एज एन एक्टर। होस्ट मैं थ्रू आउट कर रही थी, तो मुझे वो स्टेज फेयर या वो उस तरह के इश्यूज नहीं थे। तो वो था। फिर उसके बाद और एक आध प्लेज हुए। बज़्म उर्दू के प्रोडक्शन का एक हुआ, मैं शायर तो नहीं, उसमें अच्छा खासा एक कैरेक्टर था। उसमें भी उर्दू की बात हो रही थी, और 8-9 एक्टर्स और थे। तो वहाँ से ये थोड़ा 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 सिलसिला रिवाइव होना शुरू हुआ। लेकिन आपने जिक्र किया चलते चलते का, ये कहते हैं अचानक जो आ जाने वाली एक चीज होती है, इट हैड टू हैपन, इट वाज रिटन, so it just happened. I had not planned for it. I was not even expecting that I'll end up doing this role, such an iconic script to be actually working on and working for. और it just happened. हमारा बज़्म उर्दू का एनुअल इवेंट था। मैं जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हूँ। तो बज़्म उर्दू की मैं मेंबर हूँ, जो कि उर्दू के हवाले से बहुत काम कर रही है तंजीम यहाँ पर। तो हमारा सालाना इवेंट होता है महफिल उर्दू के नाम से। इस बार ये था कि मीना कुमारी एज एन एक्टर सब जानते हैं, वो शायरा भी थी, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो उनकी शायरी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी को थोड़ा हाईलाइट करते हुए कुछ पेश किया जाए। इस सिलसिले में बात चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। फिर ये हुआ कि एक एक्ट रखते हैं अलॉन्ग विद हर गजल्स एंड अदर कॉम्पोजिशंस एंड ऑल। तो बहरहाल वो स्क्रिप्ट वगैरह, डॉक्टर सईद आलम एक बहुत बड़ा नाम है स्टेज ड्रामाज इन थिएटर के हवाले से। उनकी ये स्क्रिप्ट है, डायरेक्ट भी करते हैं, खुद एक्टर भी हैं बहुत अच्छे। वो बज़्म उर्दू के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, बहुत प्रोडक्शंस किए उन्होंने बज़्म उर्दू के। तो उनकी स्क्रिप्ट थी। फिर हुए होंगे इंडिया में कुछ ऑडिशंस, ये वो। तो बहरहाल फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे इल्म नहीं है। मुझे ये इत्तला दी गई कि ये आपको करना है। तो जब ये इत्तला दी गई, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये मोनो एक्ट है, देयर इज नो अदर कैरेक्टर एंड देयर वाज नो वन एल्स। यस। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर या अपने में उतना नहीं होता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, they have much stronger confidence in you. I think that saw me through. फिर वो स्क्रिप्ट जब आई, उसके बाद पता चला ये तो मोनो एक्ट है, और अच्छी खासी तवील स्क्रिप्ट, मतलब। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन फिर वही है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, शहरयार साहब का। तो बस वो एक बार लग गए तो लग गए। और देन व्हाट आई hear from people even till date. I was in a महफिल yesterday, even there last night. It's like आज तक जिन लोगों ने देखा है, they're talking about it. Obviously the script is wonderful. और मैं सईद साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने अपनी इतनी बेहतरीन, इतनी नायाब स्क्रिप्ट मेरे जैसे शख्स को, जो कि उतना ज़्यादा प्रो नहीं है, उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं है स्टेज एक्टर के तौर पर, I mean, he entrusted his script with me. और बज़्म उर्दू का तो खैर ये है कि हमारी तंजीम है, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस था कि I'll be able to pull it through. I mean, it has become something very personal to me. I'm attached with it deep down. और वो तजुर्बा ऐसा रहा कि वो जज्ब हो चुका है मेरी रूह में। I'm not able to yet get out of it. I'm still very much there somewhere. और अगर मैं कभी अपने आप को उससे अलग करने का सोचती हूँ, या सोचती हूँ अच्छा हो गया, तो people remind me about it. There's someone or the other always talking about it. So it keeps coming back to me. तो it's a wonderful experience. अब देखिए इंशाल्लाह प्लान हो रहा है कि इसके और शोज किए जाएंगे। यहाँ भी लोग पूछ चुके हैं, हिंदुस्तान में हम लोग करने वाले हैं आज जल्द। तो वो तजुर्बा वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है।
हुआ है। अब जो उसके रिपीट शोज होंगे तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं उसको किस तरह से अब पोर्ट्रे कर पाऊंगी, या किस तरह से क्या मेरे तासुरात होंगे, या ऑन स्टेज क्या होगा। लेकिन वो उस वक्त तो तारी हो चुका था मेरे ऊपर कुछ। तो वो आपने भी अपने इस प्रोमो में मैंने सुना था कि वो चलते चलते का ही थीम लेके आप लोगों ने प्रमोट किया था। दैट वाज अगेन अ रिमाइंडर ऑफ थिंग। आई मीन आई was actually touched with this promo of yours. Thank you. You're more than welcome. So, I mean, theater is very different. I mean, I have tried theater. I have done a little bit of it, but I find it मुझे बहुत मुश्किल लगता है उतना कभी-कभी लंबी स्क्रिप्ट्स याद करना, और न सिर्फ याद करना बल्कि you know you have to present it out. Didn't you find it intimidating? I mean, आपसे हो जाता है बिल्कुल आराम से ही. ये जो स्क्रिप्ट थी, जैसा मैंने अभी अर्ज किया, ये मोनो एक्ट, और जो सिर्फ मीना कुमारी वाला हिस्सा था वो तकरीबन 45 to 50 मिनट्स का है। अब ये एक फ्लो में नहीं हुआ है, इट वॉज इंटरस्पर्स्ड विद म्यूजिक एंड कथक परफॉर्मेंसेस। क्या हुआ था कि जो उनके नगमे हैं, मुजरे उनके बहुत अच्छे हैं, उसके भी कुछ नगमे, तो उस पे हमारे यहाँ कथक गुरु हैं, उन्होंने बीच में परफॉर्म किया था। और फिर कुछ कलाम मीना कुमारी का लिखा हुआ जो कि मौसीकी में सजाकर पेश किया गया था। तो मेरे सीन्स के बीच में ये सब था, और मेरा कोई भी कहीं भी पूरे इस दौरानिया कोई एग्जिट नहीं था। देयर वाज नो क्यू, देयर वाज नो एग्जिट दैट आई कैन गो बैक स्टेज एंड रेफर टू द नेक्स्ट सीन और जस्ट रिफ्रेश। वो कुछ नहीं था। और वो तो था नहीं, उसके अलावा जो एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी वो ये थी कि इफ आई मेस अप, बाकी सबका भी एक्ट इज गोना गेट मेस्ड अप, क्योंकि मेरे क्यू के हिसाब से था या फिर वो गजल गाई जानी थी। तो सईद साहब ने जब वो स्क्रिप्ट भेजी और एंड आई रियलाइज्ड, आई सेड ये नहीं हो पाएगा, या तो मुझे टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, या मुझे कोई क्यू चाहिए, या मुझे इन एयर आप कुछ दें, मतलब मैं कैसे ही करूंगी इफ आई फॉरगेट एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड। और ये नहीं था कि सिर्फ बोल रही हूँ मैं, उस बातचीत में जो मैं कह रही हूँ उसमें बहुत सारी शायरी भी थी जो कि उसी वक्त मौजू मौके से आनी थी। ये नहीं कि मैं जब जो चाहा पढ़ दूं, जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से जा रहे हैं, यहाँ वहाँ बीच में जो बात याद आ रही है वो तो आपको उस सीक्वेंस में उसी फील और इमोशन के साथ जाना है। तो सईद साहब, तो आई एक्चुअली गॉट वेरी नर्वस व्हेन आई सॉ दैट स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां तो मशहूर हैं रटने में, तो रट लें। मैंने कहा सईद साहब, वो जमाने जब हाई स्कूल में थे उस जमाने रटा, और मैं रट के ही पढ़ा करती थी, इसीलिए मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छी थी और मैथ में आई वाज लाइक बस किसी तरह वो हो जाए, क्योंकि रटने वाले अलग होते हैं और समझ के पढ़ने वाले अलग होते हैं। तो मैंने कहा वो जमाने और थे, हमने भी रटा था, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि विद सो मच हैपनिंग अराउंड मी, माय ऑफिस एंड एवरीथिंग एल्स, कि मैं उतना रट पाऊंगी कि, लेकिन ये आप देख लें। तो खैर मैंने एक दो बार तो थोड़ा समझ के स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश की, ट्राई टू गेट अंडर the skin and try to read between the lines what was not there, so that I understand what is he trying to show on stage. तो उससे आसानी ये हुई कि फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने लिटरली रटना शुरू किया, और सीन बाय सीन रटा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन वो थोड़ी बहुत जो बची थी रटने की वो थी अभी तक उन जमानों की। तो अब जब आपको याद हो चुका है एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट योर लाइन्स, देन यू ओनली हैव टू फोकस अबाउट इमोटिंग एंड पुटिंग इन द राइट बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशंस। फिर आपके अंदर वो नहीं आ रहा होता अगली लाइन क्या है, या ये तो नहीं हो गया, मैं भूल तो नहीं रही हूँ। तो उससे मैं एक बार बेफिक्र हो गई थी। तो फिर सईद साहब यहाँ पे आए थे हमारे इवेंट से, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले ही यहाँ आए थे। तो उनके साथ वो जो ब्लॉकिंग कह लें, या एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज या उठना बैठना या फ्रेम पे बात, उन्हीं 2 दिनों में हुई थी, क्योंकि वो काम हो चुका था कि मैं याद कर चुकी थी। तो फिर जैसा उन्होंने कहा कि
एक तो ये दिखाना था कि उस वक्त, जिस वक्त का ये एक्ट था, मीना कुमारी बहुत बीमार थी, तो वो बॉडी लैंग्वेज और वो टोन, वो वॉइस क्वालिटी थोड़ी जहन में रखनी थी कि मैं अपने नॉर्मल पिच पे या अपने नॉर्मल पेस पे बात नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जनरली बहुत तेज बात करती हूँ। तो वो चीज़ें उन्होंने 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स कहे थे कि ये ध्यान रखना है। और लाइट्स वगैरह हम देखेंगे, लाइट्स हमने उसी दिन एक्ट से पहले ही देखी थी। फिर उन्होंने अचानक डिसाइड किया कि शो में जाने से पहले वो जब बिस्मिल्लाह ऑल द बेस्ट करना है, उन्होंने कहा तरन्नुम साहिबा लाइट्स मैं वहां से देख रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आप पे लाइट्स ऑफ करूँ जब डांस या गजल चल रही है। I'll just play with the lights as in whatever I feel like at that moment. So you just be, you know, in your elements and in your character. I said okay. तो वो एक और चीज हुई थी, क्योंकि मैं इस उसमें थी मुगालते में, या कि थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा जहां जहां कथक पे स्पॉटलाइट जाएगी या गजल वाले ग्रुप पे जाएगी, तो I'll be relieved थोड़ा सा। तो वो ऐसा कोई रिलीफ उस दौरान भी नहीं आया। और दूसरी चीज जो सईद साहब ने ये कही थी उन्हीं 2-4 दिनों में, उन्होंने कह दिया था कि अब यू आर there, you are ready to go, just kill the director. He uses that phrase. तो अब आपको मैं कुछ बोलूं इन आखिर के 2-3 दिनों में, आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, just do what you feel like at that moment, in your mood and in your mentally where you have placed yourself, just go with it. तो अब ये मौजू ऐसा छिड़ जाता है आमिर साहब कि मैं आई just flow whenever this is discussed with me, क्योंकि it takes me back to those days when I was working around it, working for it, और जहाँ ये सारी तैयारियां गई याद करना, वहाँ emotionally I was drenched into it. I was like it has been very heavy on me, like otherwise, apart from what people saw and appreciated, there's a lot more that has gone into it, I'm sure. beyond mugging up the lines and everything. So that was too heavy. The script is awesome, तो उस वजह से भी मेरे ख्याल से, और बस मेरे जहन में जो मेन चीज़ थी, मुझे ये था कि मैं बज़्म उर्दू को और सईद साहब को लेट डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन लोगों ने रखा और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और ये चीज़ मेरे सामने रखी कि मैं करूं, तो माय ओनली प्रेशर वाज दैट ये नहीं था कि मैं गलत ना करूं या मैं अच्छा कर पाऊंगी या नहीं, बस ये था कि आई होप एंड प्रे दैट आई डोंट डिसअपॉइंट these people who have put in so much faith and confidence in me. So that was my main worry throughout. And alhamdulillah, I can understand that. MashaAllah. Good. I can say, I mean, that is supposedly one of the best experiences you had. So far, it's so visible, yeah. alhamdulillah. And audience में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार थे उस दिन। सचिन साहब थे, सचिन अपने बॉलीवुड के एक्टर, ही वाज इन द ऑडियंस, और उधर से सना थी, सना सईद। तो ऐसे ऐसे जब आपके पास मंझे हुए कलाकार बैठे हुए हो सामने, तो फिर वो तो खैर मेरी मुलाकात उन लोगों से बाद में हुई, लेकिन ये कि द ओवरऑल फील एंड एक्सपीरियंस, और फिर जो रेगुलर स्टेज वाले हैं, सईद साहब का भी ये कहना है कि इतना लंबा मोनो एक्ट विदाउट एनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इन वन शॉट नहीं हुआ है इन उर्दू थिएटर, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। सो अब देखें अब आइंदा और जो इसके होंगे प्रेजेंटेशंस, आई होप आई एटलीस्ट इफ नॉट myself, I at least maintain what I did. I hope so. मैं इंशाल्लाह इंडिया में हूँ और हम आ पाए, देख पाए, आई थिंक दैट विल बी अ सॉलिड थिंग। आई मीन सीरियसली सोच कर ही बड़ा ओवरवेलमिंग सा लग रहा है कि 50-55 मिनट स्टेज पे रहना, कोई कट ऑफ नहीं है, कोई कहीं पर भी स्पॉटलाइट से अलग नहीं है, एंड it's way beyond mugging a script. I know. I mean, तो it's a very क्या कहते हैं, बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, to understand the gravity of it is like very difficult. So people tend to put it down into a very simple word कि स्क्रिप्ट याद कर ली तो हो गया। स्क्रिप्ट याद करने से नहीं होता है, I know that for sure.
स्क्रिप्ट याद करने से होता है, तो बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग मगिंग में बहुत अच्छे होते हैं. It was So, but, yeah, much deeper the, and way beyond that. yeah, 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 it is, it is. So, but these, like you saying कि वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, इंडिया से ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, सब मिलते हैं, साथ में प्लेस देखते हैं. So do you really think that culture and plays and arts, this has the capacity to change people's mindset, उनको साथ में लाने का, उनकी अपने जो भी चीजें हैं, वो एक मीनिंगफुल जो सोशल चेंज कहते हैं उसको ला पाने का बूता इन कल्चरल चीजों में है? आमिर साहब, वो चेंज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पे यही हैं. हम लोग जुड़े हुए हैं. Well said. क्योंकि Very हमारी true. जो तहजीब है, जो ज़बान है, जो कल्चर है, वो हमारा एक ही है, मुश्तरका ये गंगा जमनी तहजीब. तो वी आर इन इट टुगेदर, वी हैव ऑलवेज बिन इन इट टुगेदर. तो ये जो तफरीक हुई है पैदा, ये ज़बान या अदब या ड्रामा या शायरी इनसे नहीं हुई है, बल्कि जो तफरीक पैदा हुई सियासी वजूहात रही या जो भी वजूहात हैं, बहरहाल ये तमाम चीज़ें उस तफरीक को मद्धम करने के, फेड करने के काम आती हैं. और जब आप यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सरहद के इधर का है और कौन सरहद के उधर का है, क्योंकि यही हमारी ज़बान है, यही हमारी तहजीब है, यही हमारा पहनना ओढ़ना, ये हमारा खाना पीना है, सब कुछ यही है. तो ना ही हम पूछते हैं कि कलाकार कहाँ का है, कौन है, अच्छा ये इवेंट हो रहा है, अच्छा मुशायरा है, अच्छा सिंगिंग कुछ है, अच्छा गज़ल है, बस तो हम सब चले जाते हैं. ना ही वो पूछते हैं कि कौन कलाकार है, कहाँ का है, अच्छा ये हो रहा है, तो सब चले आते हैं. तो मतलब वो जो शिफ्ट हमें करना ही नहीं है किसी माइंडसेट को, क्योंकि द माइंडसेट इज वेरी मच वेरी वेल प्लेस्ड वेयर इट शुड राइटली बी. बाकी ये जो पॉलिटिक्स इधर उधर के आते रहते हैं, ये वक्त के साथ, आई एम वेरी श्योर. I think that's a brilliant answer. So, okay, moving towards your philanthropic work, शारजा गवर्नमेंट के साथ, स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन के साथ, ब्लू कॉलर कम्युनिटी के लिए, what is all that about? Can you? This is something जो मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को मंजर आम पे लेके आना जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं. हम सब में ही कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, किसी टैलेंट से खारिज कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमें अलग बनाया गया है तो हम सब में वो एक खूबी कहीं ना कहीं डाली गई है. बहुत से लोग हैं जिनको मौके नहीं मिल पाते हैं. हम लोग फिर भी बहुत खुशनसीब हैं कि जिस भी लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अपने तौर पे अपना कहीं ना कहीं शौक पूरा कर रहे हैं, अपने पैशन को परस्यू कर पा रहे हैं. बहुत लोग हैं जिनको वक्त नहीं होता, क्योंकि वो मजदूरी कर रहे हैं या उस तरह के जॉब्स में हैं जहाँ पे उनको अगर घंटे के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, तो वो घंटा अपने शौक को फॉलो करने के बजाय उस मजदूरी को देना चाहेंगे ताकि इनकम थोड़ी ज़्यादा आ जाए. तो ये जो स्मार्ट लाइफ या शारजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये लोग लेबर कैंप्स में करते हैं इवेंट्स, तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है, हम उन लेबर कैंप्स में जाके टैलेंट हंट करते हैं. कई लोग हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, कई लोग हैं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, मुख्तलिफ टैलेंट्स उन लोगों में हैं. तो अगर आप उनके कैंप्स में जाके स्टेज सेटअप करें, उनको बोलें, उनकी हौसला अफजाई करें, तो उनका कहीं टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है. तो वी आर नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम देयर वर्किंग आवर्स, वी आर गोइंग टू देयर प्लेस एंड सेटिंग अप द स्टेज फॉर देम टू कम एंड परफॉर्म. उसमें ये होता है कि एक तो उन्हें आपस में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो जाती है. उनको एक दूसरे को भी नहीं पता था, ये जो मेरे साथ शेयरिंग में रह रहा है, क्योंकि शेयरिंग में मोमनी लोग कहते हैं, इसके अंदर ये भी है. तो उनकी वो एक आइस ब्रेक होती है, जो उसमें भी मुख्तलिफ मुल्कों के लोग सारे एक साथ रह रहे होते हैं. तो ये चीज़ जो निकल के आती है, वो उनको आपस में भी उनकी बॉन्डिंग में इजाफा होता है, बेहतर होती है, हेल्दी होती है. प्लस कॉन्फिडेंस ग्रो करता है. शुरू में झिझक होती है कि इतने लोग हैं, स्टेज पे जाना, बात करना, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली ग्रोज. वो जब आते हैं और गाया या डांस किया, ग्रुप डांसेस किए,
कंट्री के जो फोक डांस या म्यूजिक है वो पेश की, तो एक तो वो सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो उनके अंदर आता है इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेने से, वो होता है। प्लस कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, अच्छा फिर जब आप कैंप्स में जाके करते हैं, फिर आप एक इंटर कैंप्स, इंटर कंपनीज करवाते हैं, तो उससे उनको जो स्टेज मिला जिसमें के जो जजेस थे, ऑडियंस थे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, रेडियो वाले लोग हैं, टीवी चैनल्स के लोग हैं, और जो जज करने आ रहे हैं वो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, दोनों तीनों मुल्कों के। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो फिर वहां से निकलने के बाद, वो एक्सपोजर मिलने के बाद, चाहे वो टाइटल जीते या नहीं जीते, लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस आ गया और उनके टैलेंट जो मंजर आम पे आया, उन लोगों ने बाकायदा दे हैव टेकन अप सिंगिंग और प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोफेशन, फुल ऑन। मतलब पहले जो उनका शौक था वो दबा छुपा, वो अब उनका क्लब्स में परफॉर्म कर रहे हैं, शोज हो रहे हैं, एल्बम आ गई है, सिंगल्स आ गए हैं। सो देयर आर पीपल हु, यू नो, वंस यू expose these people to that kind of an audience, so there are people who come forward to support the talent further. So इस तरह की थोड़ी कोशिश है कि जहाँ अपने शौक के लिए मैं एक चीज़ कर रही हूँ, वहाँ अगर मेरे शौक से और लोगों के भी जो शौक हैं, जो पैशन है, वो कहीं गर्द खा रहा है, अगर वो थोड़ा सा मैं किसी तौर सामने ला सकूँ, तो आई थिंक दैट इज think that's quite good actually. हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं एंड जो रियली हिडन जेम्स आउट देयर, जो जाहिर है कि सबके पास वो मौके नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग पैसे की किल्लत की वजह से ही ऑब्वियसली इस तरह के कामों में वहाँ मौजूद हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू शोकेस देयर टैलेंट। बट अब थिंग्स आर चेंजिंग, आई मीन स्पेशली टेक्नोलॉजी के साथ, और अब वर्चुअल इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और तमाम सारी चीजें हो रही हैं। सो हाउ डू यू थिंक it will impact cultural events या audience engagement? इसको किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करने वाली है? अब वही है, बेन और बून किस तरह से आप उसको लेना चाहें। हर चीज़ के प्लस माइनस, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं। और मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान इसी टेक्नोलॉजी ने हमें जितनी मदद दी है कि हम अपने लोगों से, अपनी ऑडियंस से, सबसे जुड़े रहे, उसका बयान करना मुश्किल है। क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, सब चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन ये एक जरिया ऐसा था जिसके जरिए हम ऑडियंस से जुड़े रहे, बल्कि जिसके जरिए हमारी लोकल ऑडियंस के बियॉन्ड हम पहुंच पाए। हमने एक ग्लोबल ऑडियंस से ताल्लुक कायम किया। तो एक तो ये फायदा हुआ इसका। अब जब हम वापस एक्चुअल रियल टाइम इवेंट्स में आ चुके हैं, तो ये वर्चुअल इवेंट्स से मुझे नहीं लगता कोई खास नुकसान या नुकसान एट ऑल होता होगा, क्योंकि जो ऑडियंस रूबरू होके कोई भी चीज देखना चाहती है, वो रूबरू ही आके देखेगी। अब जैसे मैं के तौर पे आपको देती हूँ कि जश्न रेख्ता, ठीक है, अब इस बार उन लोगों ने रेख्ता यहाँ पे मेरे ख्याल से जनवरी में किया था। सब लोग ऑनलाइन देख सकते थे, क्योंकि ऑनलाइन सूनर और लेटर आ जाता है, वो लोग लाइव भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तादाद में ऑडियंस थी, जितने दिन वो चला है जश्न, तो मतलब आपको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह की ऑडियंस शुरू से पूरे पूरे दिन वहां पे थी, क्या मंजर था। वो जश्न का एक त्योहार का ही मंजर होता है, वहां पे सब थे। और वही वाली बात कि सिर्फ हमारे यहाँ की ऑडियंस नहीं थी, मिली जुली ऑडियंस थी। और दूसरी चीज़, बतौर आर्टिस्ट जब आप स्टेज के इस तरफ होते हैं, जब मैं एक कैमरे में देख के बात कर रही हूँ या एड्रेस कर रही हूँ लोगों को, तो आप जितना भी अपना जोश व खरोश बरकरार रखने की कोशिश करें, कहीं पे आपको लगता है कि आपको वहां से रिएक्शन या वहां से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो जब आप स्टेज पे होते हैं बतौर आर्टिस्ट, तो आपको जो लाइव ऑडियंस से रिस्पॉन्स किक मिलती है, एक अलग एनर्जी रिसीव होती है, क्योंकि ये टू वे हैं इवेंट्स, या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स इज अ टू वे अफेयर। सो जब वहां से हमें वो एनर्जीज वापस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो उस ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है वो एनहांस हो जाती है, उसका पूरा का जो पूरा है वो एक अलग हो जाता है। तो लाइव रियल टाइम इवेंट्स की जगह वर्चुअल इवेंट्स नहीं ले सकते। वो मीटिंग्स,
या कुछ कॉन्फ्रेंस हो गई या थोड़ा बहुत हो गया कि आपको कहीं कनेक्ट करना है लोगों को किसी डिस्कशन के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए या कुछ इस तरह, वो वंस इन अ व्हाइल इज ओके। लेकिन बाकायदा इवेंट्स, लाइफ रियल टाइम इवेंट्स को कोई फर्क पड़ेगा नहीं वर्चुअल इवेंट से, बल्कि फायदा पहुंचा है वर्चुअल से, जिसका फायदा उस पोस्ट कोविड जो इवेंट्स हुए हैं उनको बहुत हुआ है। So it can act as an add-on, basically, uh, यस, to the live events. Yeah, I think it is रियल true. टाइम इवेंट्स, या क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, या ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये कंपनीज हैं जो इवेंट्स कराती हैं, तो उस दौरान जब वर्चुअल इवेंट्स हुए हैं तो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, जो रियल टाइम बढ़िया। ऑडियंस, उनको पता चला है वो अच्छा ये भी होता है, अच्छा वहाँ ये भी होता है। तो जब उसके बाद पोस्ट कोविड एरा में जब इवेंट्स हुए हैं तो लोग ज्यादा आपका जो ऑडियंस अटेंडेंस है, तादाद में है। इंटरेस्ट है, ज्यादा तादाद में वो बढ़ा है। लेकिन जब दोनों चीजें हो रही हैं तो मोस्ट डेफिनेटली जो रियल टाइम इवेंट्स हैं उनकी अपनी एक वो है, दैट कैन नॉट बी ओवरपावर्ड और ओवरशैडोड बाय वर्चुअल। So one thing where I think I hope that you also must be agreeing with it. You know, Nurture Life is all about mental health, and अभी धीरे धीरे करके mental health awareness बढ़ती जा रही है. So how do you believe that cultural events or performances, how can they promote mental health or mental well-being or emotional support? Can they be instrumental in that? मोस्ट डेफिनेटली यस। नर्चर लाइफ जो काम कर रही है वो बहुत ही अहम और काबिले दादो तहसीन काम कर रही है। उस चीज पे लोग फोकस कर रहे हैं जो कि बहुत अरसे से हमारे यहाँ सोचा भी नहीं चाहता था कि इस चीज को भी तवज्जो देनी चाहिए या इस पे बात होनी चाहिए, उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता था एक मसला या एक ज़रूरत। तो इन लोगों ने जो ये मुहिम छेड़ी है ये बहुत ज़्यादा वाकई में इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो आप कह रहे हैं इवेंट्स के हवाले से, तो उससे डेफिनेटली एड्स एंड एनकरेजेस द इंटेंशन दैट दे आर कैरिंग फॉरवर्ड, क्योंकि again it's all about expressing yourself. If you don't express, you keep penting up things, बहुत सारी चीजें अगर जब आप अपने अंदर सिर्फ दबा के घोट के रखते चले जाते हैं, तब आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं एक इशू बनती है, एक बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खा वो किसी लेवल पे हों, they invite you and they encourage you to be yourself and to open up in whatever capacity. So once you unleash, once you went out, once you open up, you feel fresh right there up in your head, and then that eventually leads to overall well-being and health of an individual. तो और अब So, उस तरह के इवेंट्स भी और स्टेज ड्रामास भी बहुत होने लगे हैं जहां पे इस मौजू पे बात की जा रही है और अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अंडर द कार्पेट ब्रश करते रहें। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग लाइक एनी अदर इशू दैट यू माइट हैव विद एनी अदर पार्ट ऑफ योर, सर में दर्द है या कुछ है, तो इस तरह के इश्यूज भी नॉर्मल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अब छुपाएं या ये सोचें कि अरे नहीं हम कैसे करें या हम कैसे कंसल्ट करें। तो ये जो अवेयरनेस आई है, Nurture Life is definitely playing a major role where they are placed. So, or events definitely aid and can be used further to encourage and reach out to more people with this message. so you already said that when you act or when you do all these cultural things, that acts as a stress buster. But otherwise, what's your mantra for handling stress? Kabhi kabhi. What other things do you do? I actually listen to a lot of music. I read a lot of poetry. Or stress is very natural. I think all of us face it at some point or the other. ज़्यादा या कम वो अलग बात है। I try to keep away or keep the stress away from me. कैसे मुझे भी नहीं पता,
but I think I'm pretty much stress free. I live one day at a time. I do not think a lot. I do not I don't want to look back and think about the lull or What's done? the what's done and dusted with. So if you just look ahead and just hope and have that belief that everything is gonna be good, it's gonna be good. तो और अपनी कोशिश में किसी तरह की कमी नहीं. बाकी कभी कभी होता है कि आप थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी थका हुआ फ़ील करते हैं. कभी आप ज़ाहिर-सी बात है, जिस्मानी तौर पे तो थक ही जाते हैं, ऑफ़िस जाना, ये करना, वो करना. लेकिन मुझे जो 2 चीज़ें बहुत सुकून देती हैं, वो हैं मौसीकी और शायरी. तो ये 2 चीज़ें मुझे जब बाकी तो आपके फेवरेट शायर कौन है? बहुत सारे हैं. फ़ेवरेट मुझे मतलब उस तरह से पिक करना, क्योंकि कलाम आपको कोई शेर किसी का पसंद आता है, कोई किसी का पसंद सीरियसली, आता है. ये तो तो अगर मैं दैट कहूँ इज ट्रू. तो वो एक बायस भी आएगा. मेरे वालिद साहब खुद शायर हैं, पब्लिश्ड. तो लेकिन मुझे ऑल टाइम फेवरेट्स में अगर 3-4 नाम लेने हों पापा के अलावा, तो गालिब, साहिर, फैज़, फराज, इकबाल, मतलब ये कुछ नाम है. मीर, जो कि जिनको मैं बहुत ज़्यादा अपने शोज़ में भी जब होता है तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों का कलाम पहले देखती हूँ, जहाँ पे कुछ बात करनी है, कुछ करना है. और पापा का इसलिए देखना नहीं पड़ता क्योंकि उनका काफ़ी कलाम मुझे याद रहता है, तो वो मेरी बातचीत में कहीं न कहीं आ ही जाता है. तो लेकिन मैं शायर जॉन एलिया, मतलब इतने सारे हैं, फिर जब आप सोचते तो आपको कोई कलाम कहीं से किसी का याद आता है, कहीं से किसी का कुछ. तो ये कुछ 5-6 नाम हैं जो बरजस्ता मेरे ज़हन में आ किसी रहे का हैं. कोई 2 लाइनें याद है आपको जो आपको बहुत पसंद हो? किसी और की या पापा की? पापा किसी की के मैं भी. पापा के क्यों नहीं? जो कि मुझे मैं आपको ये 2 अशार सुनाती हूँ, जो मुझे बहुत अज़ीज़ तो हैं ही हैं, और उसके अलावा एक बहुत अहम, बहुत पॉज़िटिव पैगाम भी है. एक तो पापा का शेर है कि खुद से धोखा नहीं तो फिर क्या है, खुद से धोखा नहीं तो फिर क्या है, अपनी कोशिश में कुछ कमी रखना. तो जो हम कर रहे हैं, वो हम अपने लिए सोच के करें. अगर हम कहीं भी, चाहे वो ऑफ़िस का काम है या इवेंट्स हैं या कुछ भी, मैं ये सोच के नहीं करूँ कि बॉस को पसंद आना चाहिए, या वो देखेंगे तो क्या फीडबैक देंगे, तो क्या अप्रेज़ल होगा, या स्टेज पे जाऊँ तो ये नहीं, अरे ये मुझे खुद को मुतमईन करनी चाहिए जो भी मेरी कोशिशें हों. अगर मैं अपनी कोशिश से मुतमईन नहीं हूँ, तो मेरा जो सामने एंड रिज़ल्ट आएगा, चाहे वो ऑफ़िस में परफ़ॉर्मेंस हो, चाहे स्टेज पे हो, वो कहीं न कहीं कमी होगी. तो वो ईमानदारी नहीं होगी आप जो कर रहे हैं उसके साथ. तो एक तो यही है जो व्हिच ऑलवेज़ यू नो ब्यूटीफुल. इट्स ऑलवेज़ देयर इन माय माइंड. और एक और शेर है जो बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे बहुत अज़ीज़ है. वो ये कि ज़िंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूँ, ज़िंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूँ, तेरा हर साँस मेरी उम्र घटा देता है. तो क्योंकि कहा गया है कि साँसें तय हो चुकी हैं, लिखी हुई हैं, इतनी हैं. तो जो हम हर साँस ले रहे हैं, वो हमारे जो खाता है, उसमें से एक-एक कम हो रही है. तो एक ये शेर मुझे उनका, ये थोड़ा-सा हालाँकि सीरियस तर्ज पे है, थोड़ा गहरा ज़्यादा है, लेकिन दीज़ आर द 2 अशार व्हिच आर वेरी क्लोज़ टू माय. माशाल्लाह. Beautiful actually. It's quite insightful. The first one was very insightful. Obviously. या Mashallah. Yeah. उसी So, का uh, अच्छा, आप अगर कुछ कह रही थी. उसी गज़ल से एक और भी शेर है जो कि बहुत मौज़ू है आजकल के हालात में, और इसमें 2 मायने, ज़ू मानी शेर है ये. उसमें ये है कि अब ज़माना बहुत ही नाज़ुक है, अब ज़माना बहुत ही नाज़ुक है, अपना हर लफ्ज़ कागज़ी रखना. तो कागज़ी से मायने ये भी हैं कि आप डॉक्यूमेंटेड रखें सारी चीज़ें अपनी, क्योंकि आजकल जो हालात हैं बदलते हुए, कुछ पता नहीं है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए. और कागज़ी से यहाँ मायने ये भी हैं कि हल्का रखो. सब लोग अपने-अपनी ज़िंदगी, अपने-अपने बोझ से इतना
परेशान हैं कि हमारा कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो कि उनके जहन पे, उनके कानों को गरा गुजरे, किसी को तकलीफ हो, तो अपना हर लफ्ज़ कागज़ी रखना, हल्का रखो। और एक ये शेर खास तौर से जो दुआ के तौर पे मेरे जहन में रहता है कि तकब्बुर खुद सताइश से है बचना, तकब्बुर खुद सताइश से है बचना, मेरे मौला मुझे अदना ही रखना। तो that's about it. This is MashaAllah. the thing which Beautiful. I revolve around. Awesome. Very lovely poetry, actually. Very, very lovely poetry. अनवर ताबा मेरे वालिद का नाम है, अनवर ताबा, जिनका मैंने Anwar कल Taba. पेश किया जी। So I'll look it up. Definitely look it up. So thank you so much, Tarannum. That was awesome talking to you. That was such a brilliant time and so much to learn from you. I mean, I'm looking forward to your shows. And before I take your leave, I really want to know, okay, what are your upcoming plans and projects? And seriously, when are you bringing Chalte Chalte to India? Very soon, inshallah. Chalte Chalte, most probably by November, we'll be there. It'll be a multiple city. Okay. Yeah. So maybe Lucknow and Delhi in one shot. That's how we are planning, inshallah. So I'll keep all of you posted on my timeline and also on Buzz Mein Urdu timeline because it's a Buzz Mein Urdu production. So we'll go with our team. और फिलहाल जो upcoming मेरे events हैं, the next that I have in line is on 21st of September, which is a Malhar event. और उसमें we are celebrating 100 years of Bollywood music, right from Alam Ara, like right from 1931 till date. So that's the journey of Bollywood music. वो एक बड़ा interesting presentation होने वाला है. It's again a musical, drama and dance, everything put together. So that's what I'm looking forward to right now. And that's where I was actually when we last chatted. वहीं की रिहर्सल से मैं फारिग होके फिर आपसे मैंने राब्ता किया था, जो आप कह रहे थे हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। उसके अलावा कई चीज़ें लाइंड अप हैं, तो वो हर महीने एक दो कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। अगर कुछ बहुत मेजर नए इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो भी जो हमारी नशिस्तें या बैठकें होती हैं, जहाँ पर हम उर्दू ज़बान और तहज़ीब और अदब के हवाले से बात कर रहे होते हैं, वो सिलसिला तो हर हफ्ते या हर 15 दिन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो थोड़ी जो ग़िज़ा ज़हन को चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहती है। बहुत हो। So कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? Something from your experience, something that you want to share with people. इतना मतलब मैं खुद भी अभी आई एम एट अ स्टेज वेयर आई एम लर्निंग एवरी डे एज आई मूव फॉरवर्ड। हर दिन मैं खुद कुछ सीख रही होती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस ऐसे किसी मकाम पे हूँ जहाँ मैं लोगों को कुछ सबक या कुछ पार्टिंग नोट के तौर पर छोड़ के जाऊँ। लेकिन व्हाट आई लिव बाय इज लेट गो। ये जितना हल्का रखें, जितना खाली रखें नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से, उतना हमारे लिए बेहतर है। जस्ट लेट गो। और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पैशन है, उसको जिस भी लेवल पे, जिस भी तौर पे हो, थोड़ा सा पकड़ के रखें और थोड़ा सा परस्यू करें, छोड़े नहीं। क्योंकि एक जो ज़िंदगी हम सुबह से शाम गुजार रहे हैं 8 बजे से 5 बजे की, अपनी अपनी नौकरियां, अपने अपने पेशों में, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम उसके अलावा, उसके बियॉन्ड भी हम हैं कुछ। तो हमें बहुत अहम है कि हम उस चीज़ को, खुद को एक मौका दें। फॉर वंस कहीं से भी टाइम, बहुत आसान नहीं है, मुझे अंदाज़ा है मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, अपने शौक के लिए निकालना बहुत सुकून देता है। Very true. Thank you so much, Tarannum, for taking out time for us. Thank you so much for talking to us. बहुत अच्छा लगा. And thanks a lot to Nurture Life, and all the best for all the good work that they are doing. अल्लाह बहुत उन्हें कामयाबी दे और उनका जो पैगाम है वो और दूर दूर तक पहुँचे और लोग जुड़े उनके साथ इस काविश में. And it was lovely talking to you. Thank you so much. Take care. Lovely talking to you too.
Bye-bye. And as for the rest of you, we'll be meeting again probably next week on Sunday at 8 p.m. Thank you so much for being there. Thank you so much for joining us. Allah Hafiz. Shabba khair.